Okay, so welcome again to my channel. Hope you are finding all the videos quite useful for you. And I am trying to upload all the videos related to all the topics of the course THU 101. And the same course applies to THU 201 also. And I hope these videos will help you in preparing for exams. So we have till now we have covered about meaning and definition of communication, and then we talked about the principles of communication. We also have discussed the Albert Mehrabian model and some different theories of communication. And then once I in one video I discussed about the LSWR skills, right? So today we are going to talk about types of communication. So, when we try to categorize communication in a broader perspective, we divide it into two categories. These are verbal and non-verbal communication. Let me go back to that slide here. So, we have two basic categories of communication. This is verbal and non-verbal communication. So, what is verbal communication? Let's understand that. See, as you can see in this picture, you are not able to see anything else than words, right? So, it simply means that whenever we are communicating using any word of any language and in any sense, that will be verbal communication. Means हम कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करके अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और एनी मदर टंग, वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज के वर्ड्स होने चाहिए, राइट? अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट? सेकेंडली, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपने लैंग्वेज को यूज़ करके आप यू आर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग और यू आर रीडिंग, राइट? और यू आर लिसनिंग, राइट? तो LSWR स्किल्स हमने अभी स्टडी करी थी लास्ट वीडियो में। तो LSWR लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों में से आप कुछ भी कर रहे हो, राइट? बट देर आर वर्ड्स इन्वॉल्व इन टू दिस। अगर आप सुन रहे हो तो आप वर्ड्स को सुन रहे हो, आप बोल रहे हो तो वर्ड्स बोल रहे हो, you're writing words or you're reading words, then that means that you are involved in verbal communication. All right, now here you may be surprised to know कि अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम तो वर्ड से ही कम्युनिकेट करते हैं. यू मे बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट डियर स्टूडेंट्स, you are wrong here. You may be surprised to know that we communicate sometimes, and oftentimes we communicate without using words also, right? And that is called non-verbal communication, right? So all that communication where we are using words, which is using words of any language in any sense, that is all verbal communication. And when we are communicating but we are not using words in any sense at all, then we say that we are communicating non-verbally, right? Now non-verbal communication is a broader concept, or we can say it's an umbrella term actually, and it has some subcategories also. Now let's understand what are these subcategories. First of all, when we talk about non-verbal communication, we talk about haptics. Now haptics is known as touch language. Touch language means the way you touch somebody, the way someone touches someone else, the way someone touches you, that also communicates something. All right. So it's not only that the words are being used for conveying a message or feeling or emotion. We use touch to communicate also. How do we use touch? See, the way someone hugs someone else or a friend, right? जब आप हग करते हो किसी को, आपको हग करने का एक तरीका डिफरेंट होता है, राइट? पेरेंट्स के साथ आप डिफरेंट तरीके से हग करते हो, आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइटली हग करते हो, बहुत दिनों बाद किसी फ्रेंड को मिले हो, राइट? तो डिपेंड करता है कौन कौन सी सिचुएशन में आपका दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, आप किस सिचुएशन में हो, तो आप डिफरेंट टाइप से हग करते हो. हग इज़ also a kind of
कम्युनिकेशन। आप जिस टाइप से हक करोगे ना, कभी आप सैड हो, आप बड़े दुखी हो के दूसरे को हक करते हो तो पता चल रहा है कि हाँ आप बहुत दुखी हो, आप सैड हो। और कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड हो तो आप अपने फ्रेंड को बहुत टाइटली हक करते हो तो पता लगता है कि यू आर वेरी एक्साइटेड, राइट? So the way you hug someone, the way you hug your friends, it communicates. Now it's not only about hugging or embracing, it's about shaking hands also. The way you shake hands with other people. तो क्योंकि कहीं ना कहीं टच है ना, यू आर टचिंग समबडी एल्स, तो वो टच से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आपने हग किया, एम्ब्रेस किया, या आपने शेक हैंड किया। अब शेक हैंड भी कभी कभी आप बहुत टाइटली करते हो, कभी कभी आप बहुत हल्का सा करते हो, बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कि यू डू नॉट वांट टू शेक हैंड बट यू आर शेकिंग हैंड, क्योंकि आप किसी सिचुएशन में हो तो आपको शेक हैंड करना पड़ रहा है, बट आपको सामने वाला पर्सन पसंद ही नहीं है, या आप उसको टच भी नहीं करना चाहते हो, आप उसको अच्छा ही नहीं समझ रहे हो बट शेक हैंड कर रहे हो, तो वो शेक हैंड कैसा होगा? तो कभी कभी आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ शेक हैंड करते हो जो आपका आइडियल है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, राइट? उसके साथ आप शेक हैंड करोगे तो वो कैसा शेक हैंड होगा? सिमिलरली आप किसी फ्रेंड के साथ करोगे, लाइक आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत टाइम बाद आपको मिला है, तो उसको आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो तो शेक हैंड कैसे करोगे? सो शेक हैंड करने का तरीका अलग अलग होगा आपका। एंड देन ड्यूरेशन भी ऑल्सो मैटर करती है। कभी कभी ड्यूरेशन बहुत लंबा है, कभी बहुत छोटा सा ड्यूरेशन है, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेट करती हैं, राइट? दे ऑल्सो कम्युनिकेट वट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, राइट? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द अदर पर्सन, उसके अकॉर्डिंग यू आर शेकिंग हैंड विद दैट पर्सन, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। देन उसके अलावा हाउ डू वी यूज़ हैप्टिक्स? लाइक समटाइम्स यू मस्ट रिमेंबर कि कभी कभी आपके पेरेंट्स ने आपको चाटा मारा होगा, राइट? You must have got some slaps from your parents or your teachers in your childhood, right? So that was also tactile communication. Haptics is also known as, actually haptics is also known as tactile communication, touch communication, right? So किसी को स्लैप मारना, that is also a way of communicating ना। आपकी मदर ने आपको कुछ भी नहीं बोला, आपने कुछ गलत किया और आपको एक बहुत ज़ोर से चाटा पड़ गया, तो दैट वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। उन्होंने बोला तो कुछ भी नहीं, शी हैज़ नॉट यूज एनी वर्ड, कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, विदाउट यूजिंग एनी अ सिंगल वर्ड, एक चांटा लगाने से समझ में आ गया कि शी इज़ एंग्री एंड यू हैव डन सम मिस्टेक, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, राइट? सिमिलरली कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमारे ना गाल सहलाते हैं, प्यार से ऐसे टच करेंगे आपके गाल को, या आपकी बैक पे पैट करेंगे, थपथपाएंगे, आपने कुछ अच्छा किया, शाबाश, वेल डन। तो ये अलग अलग जेस्चर्स हैं, they are communicating, they are not using words to communicate, right? So that means when we are communicating without using words और हम touch use कर रहे हैं, touch language use कर रहे हैं, तो that means we are having communication in a non-verbal way and we are involved in tactile communication or touch communication, right? देन उसके बाद आता है हमारा हैंड जेस्चर्स। अब हैंड जेस्चर्स, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद हैंड जेस्चर्स दीज डेज। आप सोशल मीडिया पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और वहाँ पे सारा दिन आप इमोजीज भेजते रहते हो, थम्स अप की, थम्स डाउन हो गया आपका, या स्माइली फेसेस, इतने बढ़िया स्माइली फेसेस सब अवेलेबल हैं, स्टिकर्स अवेलेबल हैं, राइट? एंड समटाइम्स यू ऑल्सो यूज़ योर हैंड्स टू कन्वे समथिंग, यू डू नॉट यूज़ वर्ड्स, you liked something, आपने ऐसे थम्स अप किया, you wanted to say that you are happy with something, आपने अपना थम्स अप किया, राइट? सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ जेस्चर, आपने एक जेस्चर शो किया और कम्युनिकेट क्या हुआ कि यस यू लाइक्ड इट। अगर आप थम डाउन करोगे तो ये पता है आपको, तो मेरे से ज़्यादा ऑब्वियसली यू आर मोर इंटेलिजेंट इन ऑल दीज सोशल मीडिया थिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बट वी आर यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट without speaking a single word, right? That is known as gestures. Then we have proxemics also. Now what does proxemics says? Proxemics says the distance that we observe while talking to someone, while communicating with someone. We are communicating, right, in different way. The way we come closer or we remain a little bit further from the person with whom we are communicating, that also shows or that also talks about our relation with that particular person, that also shows about what's going on in our mind in that particular situation, all right? Now let's take for example, you are very close to your mom or your dad, right? So whenever you are having dinner or you're watching TV, you are sitting very close to your mother or your father.
But the moment or the situation when you are angry, you are sad, or your demand was not met, you demanded something, or your mother didn't give that thing, you are sitting at a distance, right? So now that distance means something is going on in your mind, something is wrong, right? And similarly, whenever you are sitting in a class, sometimes you sit so close to your friends. आप एक एक टेबल पे चार चार लोग इकट्ठे बैठते हो बिल्कुल टाइट होके, दो बहुत सारी सीट्स खाली हैं, बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल हैं, चेयर्स अवेलेबल हैं, बट यू आर सिटिंग वेरी क्लोज टू योर फ्रेंड. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली सिग्निफाइज दैट you are having a very good understanding, you share good understanding, you have good relationship with your friends, right? अब किसी किसी के साथ आप बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हो, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू यू, और मे बी दैट यू डू नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स वाई यू आर मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर गैप और फिजिकल डिस्टेंस यू आर मेंटेनिंग, राइट? ऐसे ही कभी कभी ऐसे होता है, राइट, कि समवन व्हेन समवन टॉक्स टू अस, दैट पर्सन बिकम्स वेरी मच क्लोज फिजिकली, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आके बात करता है हमारे साथ, एंड वी स्टार्ट बिकमिंग अनकम्फर्टेबल because we do not like that kind of situation, we are not comfortable in that situation. So every human being always have a fixed boundary, that is also known as personal space. हम सबकी पर्सनल स्पेस होती है, उसके अंदर हम बहुत ही कम गिने चुने लोगों को एंटर करने की परमिशन देते हैं. वो जनरली हर पर्सन के लिए एक या दो या तीन ही लोग होंगे, राइट? इसके अलावा कोई और उस पर्सनल स्पेस में जब एंटर करता है, तो देन वी बिकम अनकम्फर्टेबल, राइट? एक काइंड ऑफ अनईजीनेस आ जाती है, एंड वी स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्सन. जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल क्लोज आके आपसे बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि अरे इतना क्यों ऊपर चढ़ रहे हो, थोड़ा पीछे के बात करो, राइट? सो दिस सिचुएशन ऑल्सो कम्युनिकेट्स अ लॉट, एंड दिस इज़ नोन एज प्रॉक्सिमिक्स, कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमिक्स. that see here also we are not talking anything, we are not speaking anything, हम बात नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं. आप एंटर करते हो क्लास में, आपके क्लास में ऑलरेडी एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, और आपको टीचर ने बोला कि वहीं बैठ जाओ, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अलग से बैठ रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल, और यू आर स्ट्रेंजर, और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो दैट्स वाई यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो आप नॉर्मल एक एवरेज जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो. तो दैट ऑल्सो कम्युनिकेट्स, राइट? दिस इज़ वॉट वी कॉल प्रॉक्सिमिक्स. देन थर्ड थिंग इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशन में भी आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, इंस्टाग्राम एंड ये सोशल मीडिया साइट्स आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, एंड यू हैव ऑल दोज इमोट आइकन्स, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग, जो स्माइलीज यूज़ करते हो येलो कलर वाली. सो व्हाट आर दोज फेशियल एक्सप्रेशंस? सो इट इज़ नॉट ओनली कि हम वही यूज़ कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन एक्चुअली कैसा है. यू डोंट यूज़ अ वर्ड, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ वर्ड, राइट? आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत कुछ कहता है. दिस इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन मेथड ओनली, राइट? यू आर ईटिंग समथिंग, कुछ कोई फेवरेट चीज़ आप खा रहे हो और बहुत टाइम बाद खा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिलीशियस चीज़ है वो, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, राइट? एंड अगर वही चीज़ खाते खाते अगर आपके मुंह में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलत चीज़ आ गई जो आनी नहीं चाहिए थी, तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, राइट? ऐसे ही अगर आप किसी पे एंग्री हो, तो आपका एंग्री वाला फेस होगा, कभी स्माइलिंग फेस होगा, राइट? तो कभी पोकर फेस भी होता है, एक्सप्रेशनलेस फेस ऑल्सो दैट कन्वेज, राइट? पोकर फेस दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ feelings towards that situation, that's why you are having a poker face in that situation. So that is known as facial expressions. देन उसके बाद आता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक. पैरालिंग्विस्टिक्स इज़ ऑल्सो a category of non-verbal communication only. Yeah, see, whenever we use different tones, different pitch to speak, right? अलग अलग टोन में हम बात करते हैं, तो अगर हम वर्ड्स को अलग कर दें वहाँ से, और जो टोन है हम उस पर फोकस करें, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पैरालिंग्विस्टिक्स. तो कभी कभी हमारी पिच, हमारी टोन बहुत ज़्यादा रेस हो जाती है, कभी कभी हम बहुत स्लो बोलते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी नो एज पैरालिंग्विस्टिक्स. उसके बाद वी हैव बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. नाउ बॉडी लैंग्वेज मीन्स द वे वी टॉक, वी वॉक, वी सिट, वी स्पीक, ये सारी चीज़ें, हम अपने सारे ऑर्गन्स, अपने बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं, राइट? दे ऑल्सो कम्युनिकेट अ लॉट. लाइक आप वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, वर्ड्स से आप कुछ भी बोल रहे हो, but it is really hard to manipulate your body.
So these, though it is not, I won't say that it is like impossible to manipulate, because अभी हमने कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल करा था कि दैट वी कैन ऑलवेज लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अगर बॉडी लैंग्वेज हमारी अच्छी नहीं है तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो फेक अवर बॉडी लैंग्वेज, लाइक समटाइम्स वी आर नॉट हैप्पी विद समवन और सम सिचुएशन और समथिंग, बट बिकॉज हमें मैनिपुलेट करना आ गया है, वी हैव लर्न बॉडी लैंग्वेज एंड दो स्किल्स, तो हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, सब अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, राइट. बट कहीं ना कहीं दैट एलिमेंट ऑलवेज इज मिसिंग. द अदर पर्सन वेरी क्विकली कम टू नो कि यू वॉन्ट टू से समथिंग एल्स बट यू आर शोइंग समथिंग एल्स. आपके फेस एक्सप्रेशंस कुछ और हो रहे हैं, आपके वर्ड्स कुछ और हो रहे हैं, राइट. सो बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो carries great importance when we talk about communication. सो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट हो जाता है. इफ़ वी जस्ट सिट टू डिस्कस अबाउट बॉडी लैंग्वेज, दे हैड गॉट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारा कंटेंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग दैट ऑल दो थिंग हियर. वी कैन हैव अनदर वीडियो ऑन पर्टिकुलर ऑन बॉडी लैंग्वेज थिंग ओनली, बट अभी बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द होल कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो हमारे कोर्स में इतना ही है दैट वी शुड नो व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, ये पता होना चाहिए हमें. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अपीयरेंस, राइट. अपीयरेंस, अब आपकी अपीयरेंस कैसी है वो भी कन्वे करती है कुछ ना कुछ, वो कम्युनिकेट करती है, राइट. आपकी अपीयरेंस, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी समबडी वेयरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म, राइट, सेल्डम वी सेल्डम गो एंड आस्क आर यू ए पुलिसमैन. उसके यूनिफॉर्म से हमें पता चलता है भाई वो पुलिसमैन है, राइट. या if we come across somebody wearing a long white coat, so do we ever go and ask are you a doctor? Never ना. we always know कि हाँ वो उसने वो वाली यूनिफॉर्म पहनी है तो वो डॉक्टर ही होगा, राइट. या एडवोकेट होगा, राइट. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहले से ही डिफाइंड है, राइट. एंड सिमिलरली इफ़ वी सी अ वुमेन वेयरिंग रेड कलर वाली बैंगल्स, चूड़ा जो पहना हुआ है या मंगलसूत्र पहना हुआ है उसने, तो वी कम टू नो या शी इज़ मैरिड, राइट. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक अपीयरेंस से वी गेट द आइडिया. अपीयरेंस कम्युनिकेट अ लॉट अबाउट यू, राइट. एंड प्लस द ड्रेसिंग सेंस, राइट. आप किस टाइप से अपने आप को ड्रेसअप करते हो, अपनी अपीयरेंस कैसे आप मेंटेन करके रखते हो, दैट ऑल्सो सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. यू नीड नॉट टू स्पीक अ वर्ड, आपको एक वर्ड भी बोलने की ज़रूरत नहीं है. आपके सामने कोई भी पर्सन आता है, उसने सूट वूट पहना हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रखा है, तो यू नो दैट ही इज़ अ वेरी यू नो डिसेंट पर्सन, हम बोलते हैं उसको, या हम बोलते हैं कि हाईली एजुकेटेड पर्सन, सोफिस्टिकेटेड पर्सन. हमने तो बात ही नहीं करी उससे, हम दूर से उसको देख रहे हैं कि उसकी पर्सनैलिटी से वी आर जजिंग कि हाँ ये अच्छा लग रहा है. सो सिमिलरली द पर्सन हु इज़ नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स और बहुत अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुआ है वो, तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही, इससे क्या डरना है, इससे तो मैं तो वैसे बात कर लूँगा. लाइक वी टेक दैट पर्सन वेरी कैजुअली, ऑल राइट. सो अपीयरेंस ऑल्सो मैटर अ लॉट. देन कम्स आई कॉन्टैक्ट. ना आई कॉन्टैक्ट भी अलग अलग टाइप का है. यू मे बी सरप्राइज टू नो, अभी तक आई कॉन्टैक्ट का मतलब था कि लाइक अगर इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. लाइक इट शोज़ दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. लाइक इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट दैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. और अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते हो तो दैट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस की कमी है. ये तो अभी तक आपने पढ़ा था, समझा था. But let me tell you something more about eye contact. See, eye contact is something and staring is something different. So eye contact हमें करना है but हमें stare नहीं करना है. First of all, you should know all this thing. It should be very much clear in your mind. अगर चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाओ या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्लास में या कहीं पे भी wherever, आई कॉन्टैक्ट मतलब ऑडियंस में जितने भी लोग हैं सबके साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको आई कॉन्टैक्ट करना है. देन योर कॉन्टैक्ट ऑफ आई शुड यू नो कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑडियंस. एक को पकड़ के नहीं करना है, तो ऐसे करोगे तो दैट वे यू विल बी जस्ट यू नो इंटिमिडेटिंग द अदर पर्सन. तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा. जो जिसको आप आई कॉन्टैक्ट करोगे, आप तो शो करो कि मैं कॉन्फिडेंट ही बहुत हूँ और वो आपसे डर ही जाएगा. सो वैसे वाला आई कॉन्टैक्ट नहीं. आई कॉन्टैक्ट छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है हमेशा. देन
Eye contact also communicates a lot. So, uh, have you ever, thought that sometimes we communicate through eyes also, right? Eyes से कैसे communication होता है? Not only कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर्स जो करते हैं वो तो ठीक ही है, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। सो आँखों से नज़रों वाले बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, राइट? सो दैट इज़ ऑब्वियसली आई कम्युनिकेशन। बट उसके अलावा भी तो आई कम्युनिकेशन होता है। यू कम लेट टू द क्लासरूम एंड योर टीचर इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द लेक्चर, लेक्चर चल रहा है आपकी क्लास में, और द टीचर डज नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कह रहे आप, उन्होंने हैंड मूवमेंट करा कि ठीक है कम इन, बोल ऐसे इशारा कर दिया, एक सिग्नल दे दिया कि आ जाओ, और उन्होंने आई ग्लेयर ऐसे दिया कि आप डर गए एकदम से। व्हाट इज़ दैट? उन्होंने आपको एक वर्ड भी नहीं बोला, बट आपको एक मैसेज रिसीव हो गया, यू अंडरस्टूड दैट मैसेज कि आप, द टीचर इज़ वेरी एंग्री, राइट? सिमिलरली ऐसे ही पेरेंट्स के साथ होता है, लाइक गेस्ट आए हैं घर में बहुत सारे, और गेस्ट जाते टाइम आपको कुछ वो शगुन दे के जाते हैं, और आपकी मदर आपको अलग ही टाइप की एक आई 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 ग्लेयर देती है, आपको समझ में आता है कि व्हाट डज शी वांट्स कि वो पैसे वापस कर दो, नहीं रखने हैं तुम्हें वो पैसे, तो वो आई कम्युनिकेशन है, राइट? ऐसे ही इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट और विद योर पेरेंट्स और यू वांट टू बाय समथिंग, आपके फ्रेंड्स भी हैं साथ में, एंड आपके फादर आपको एक आई साइड एक ऐसी नज़र देंगे, एक ऐसा ग्लेयर देंगे दैट यू विल अंडरस्टैंड कि फादर क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई कॉन्टैक्ट। ऐसा भी हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है, लाइक व्हेन वी डू नॉट स्पीक अ वर्ड, व्हेन वी डू नॉट अटर अ वर्ड, बट वी कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, एक किसी ने मैसेज सेंड किया है, किसी ने रिसीव किया है, किसी को मैसेज कन्वे हो गया है, अच्छे से डिकोड हो गया है, अंडरस्टूड। सो ये आइज कम्युनिकेशन है। देन वन मोर category is artifacts also. Now artifacts, in layman's language if I tell you, मतलब जो चीज़ें, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हम अपने आसपास यूज़ करते हैं, अपने अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, या जिस टाइप की व्हाट शुड आई से डेकोरेशन पीसेस और असेसरीज, या असेसरीज वुड बी द राइट वर्ड आई गेस। सो वो असेसरीज जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने आसपास, these are known as artifacts here in this communication when you talk about non-verbal communication, right? Like आपने अपने रूम को कैसे डेकोर किया हुआ है, आपका रूम का डेकोरेशन कैसा है, डेकोर कैसा है, या if we go to some hotel, let's assume you go to some hotel or a restaurant, तो then sometimes हमें लगता है कि यार ये इसमें से अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं, इट्स नॉट अ गुड प्लेस, एंड यू जस्ट मूव आउट। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी एक ऐसे प्लेस पे जाते हो, किसी फार्म हाउस पे या होटल में या रेस्टोरेंट में, तो उसकी वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी आती हैं, आपको लगता है इसका डेकोर कितना अच्छा है, बड़ा कलरफुल है, बड़ा लाइवली सा है, तो लेट्स स्पेंड सम टाइम हियर। तो वो लाइवली जो कलरफुलनेस और लाइवलीनेस है वो क्या है, व्हाट इज़ दैट? So it is about the artifacts that those people have used, right? It is about the artifacts that your parents are using in your home. That those artifacts convey a lot about the personality of your parents, right? आपके घर में कौन सी कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, या एंटीक पीसीज हैं, राइट? या बहुत कुछ लेटेस्ट ट्रेंडी सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मॉडर्न आइटम्स रखी हुई हैं डेकोरेशन के लिए, किस टाइप का आपका फर्नीचर है, लाइक किस टाइप की चीज़ें आप यूज़ करते हो अपने घर में, that those things speak a lot about your parents, because वो घर अभी आपके पेरेंट्स का है, राइट? सिमिलरली व्हेन यू विल मेक योर ओन होम, तो आप अपने होम में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स यूज़ करोगे, दैट विल कन्वे अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो इन नट शेल, communication is a lot more about so many other things. So let's not just limit it to words. Only words नहीं है, words के अलावा भी we communicate, and we communicate in so many different ways, right? So this is all about the types of communication, and in the next video I'm thinking to talk about the advantages and disadvantages and other things also, right? So I hope I am successful in making it clear, making the concept clear to you. I hope you all have understood the concept of verbal and non-verbal communication.
So if you have not watched the previous videos, you can go back and watch it out and just wait for my next video. And yeah, that's all from my side. Thank you for watching. Bye bye, take care.